Hello class 9 students, welcome all of you in this online class. So this is Firdaus, I am your math teacher. So as you all know that we are solving exercise 2.5 of NCERT class 9 mathematics. So few questions are left in our previous class. So that is question number 9, 12, 13. Okay, these are the questions based on the verification of the formula. Okay, so let's see how I am verifying this formula. So first in question number 9 you have given, that is in question number 9 you have given here, in one number you have to verify x cube plus y cube is equal to x plus y and x square minus xy plus y square. Okay, so this is you have to prove. Okay, so first we know that what x plus y whole cube is equal to what x cube plus y cube plus 3x y x plus y. As you all know that this term, that is x cube plus y cube, will come in the formula of x plus y whole cube. So this is you have to prove, that is x cube plus y cube. See here, x cube plus y cube आपको प्रूफ करना है. So x cube plus y cube is equal to what, x plus y whole cube and minus 3xy x plus y. ओके, जब आप इसको निकालोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा, दैट इज माइनस में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट x cube plus y cube is equal to, here you have x plus y whole cube, that is x plus y is 3 and here x plus y is 1. So take the common, that is x plus y. Okay, so what left in the first term, that is x plus y, here is 3, 1 is a common, and what left, x plus y whole square is left inside the bracket, and next here minus 3xy. Okay, so what, x cube plus y cube is equal to x plus y, and expand this formula, x plus y whole square, that is x square plus y square and plus 2xy, and here you have, that is minus 3xy. Now x cube plus y cube is equal to x plus y, and here x square, y square, and see xy and xy same to same, minus plus minus, that is minus xy. So this is your verification. Okay, it is very simple. ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है. ठीक है, आपको बस देखना है कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब किस में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करना है, प्रूव कर लेना है. ओके, बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 of 1, 9 of 2, that is x cube minus y cube, x cube minus y cube. So x cube minus y cube is equal to x minus y, x square plus xy plus y square, that is you have to prove this. So first we know that what, x minus y whole cube is equal to x cube minus y cube minus 3xy and x minus y. Okay, so again you have to find this x cube minus y cube. So transpose this here, that is x cube minus y cube is equal to x minus y whole cube and this plus 3xy x minus y. ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप मैं मतलब मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को निकालना पड़ेगा, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो प्लस फॉर्म में आएगा. तो ये अरेंज करके मैंने लिख दिया, इसको RHS में ही लिख दिया. ठीक है, अब अगेन सिमिलरली
as we have done before, take the common x minus y and inside the bracket x minus y whole square plus 3xy. So from this x cube minus y cube is equal to x minus y. So x square plus, what is the formula of x minus y whole square? X square plus y square minus 2xy and plus 3xy. So from this what you get? X cube minus y cube is equal to x minus y, here x square plus y square and plus xy. Okay, see, proved, very simple. ओके तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन बनता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 12 में बता रहा हूँ, 13 देख लीजिए पहले. 13 में क्या है? 13 में जो एक फॉर्मूला है आपके पास उसको अप्लाई करना पड़ेगा. गिवन यहाँ पे इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन सो दैट व्हाट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. तो हियर ऑल्सो वी नो दैट what you know that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z. Okay, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz, ये होता है आपका. सो ये वाला टर्म क्या है? ज़ीरो है ना. देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0. सो व्हेन यू पुट 0 हियर, जब यहाँ 0 पुट करोगे आप तो 0 इंटू समथिंग 0 है ना, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया. सो यहाँ से आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, इसको जब इधर लेके आओगे तो प्लस में हो जाएगा 3xyz. तो ये आपका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, इसको करो, है ना. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 है ना. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा इसको. हियर यू हैव गिवन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर. आपको ये प्रूफ करना है. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट दैट इज वी नो दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई minus yz and minus xz. This is your formula. So now you have to solve, prove that, verify this equal to this. So how can you prove? So in this RHS है ना, x plus y plus z we have to multiply and divide. We have to multiply and divide by 2 with a numerator. मतलब इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, डिवाइड भी 2 से कर दोगे, तो बहुत ही सिंपल है ना. दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से बनेगा आपका. ये देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं और 2 से सबको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ मैं. तो सबका 2 देखो, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कॉमन अगर आ जाता है यहाँ पे तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. तो अब जो आपका यहाँ पे बनेगा है ना, अब जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट होगा क्या, देखो ध्यान से. 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2x स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना है, 2 है. इसको
स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 2xy 2yz माइनस 2xz। तो ये आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस 2xy है ना, ये जो तीनों मिलके एक फॉर्मूला देगा आपको, ये और ये है ना। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मिलके एक आपको फॉर्मूला क्रिएट कराएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आपका ये एक्स स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर जेड स्क्वायर इसमें आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xz हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो होता है CA होता है लास्ट फार्मूले में, तो आपको ZX लेना है। तो पहले आपको Z लेना है ना, फिर आपको ये लेना है, ठीक है। इस तरह से करना है, यहाँ पे एक रिमोडिफाई करना है बस आपको यहाँ पे, ठीक है। आपका Y और आपका, क्योंकि जो फार्मूला है ना आपका, ये फार्मूला आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं दिखाऊँ आपको फार्मूला, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, ZX ले रहा है पहले, है ना। तो यानी कि ZX मतलब क्या, A पहले वाला होगा और B लास्ट वाला होगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आप यहाँ करोगे तो ये वाला प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, तो ये तीनों आपका एक फार्मूला क्रिएट कराएगा, ये तीनों एक फार्मूला क्रिएट कराएगा आपका। ये तो स्टार्टिंग में 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा ही, ठीक है। इन तीनों से एक फार्मूला बन जाएगा जिसको बोला जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस है और इससे आपका क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स। मैंने बोला था आपको पहले z लेना है फिर बाद में x लेना है, ठीक है। तो z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर, जो आपका प्रूफ हो चुका है पहले। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आपका इजीली आपको अंडरस्टेबल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बच रहा है आपका इस एक्सरसाइज में, जो आपका इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, हियर यू हैव गिवन -12 क्यूब एंड प्लस 7 क्यूब एंड प्लस 5 क्यूब। तो यहाँ पे बच्चों विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, बिना एक्चुअल कैलकुलेटिंग क्यूब किए, आपको बिना कैलकुलेट किए आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है, क्यूब नहीं फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में तो लेट फर्स्ट वन यू हैव दैट इज A एंड सेकेंड वन दैट इज B एंड थर्ड वन दैट इज 5. So now A plus B plus C, that is -12 plus 7 plus 5, you will get 0. So when we know that when A plus B plus C equal to 0, A plus B plus C equal to 0, then A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC, या फिर XYZ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो क्या होगा फॉर्मूला, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, 7 3 जा 21 एंड 12 5 जा -60, ओके, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विदाउट इट। तो इसको भी इस तरह से बनाना है, ठीक है। पहले आपको दिखा देना, यही प्रोसीजर होगा पूरा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था एक्सरसाइज 2.5 का। तो इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके देन, थैंक यू।